Hello all, welcome to Bhagat Academy. So today's topic is design of counterfort retaining wall. So first of all, what is counterfort retaining wall? Counterfort retaining wall का मीनिंग जब भी अपना बैकफिल का हाइट 6 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हम वहाँ पे अपना कैंटिलर रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वी गो फॉर काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल. काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल इज बेसिकली सेम एज दैट ऑफ कैंटिलर रिटेनिंग वॉल. अगर हम इसका ये वाला पार्ट देखें सो इट इज सेम एज दैट ऑफ कैंटिलिवर रिटेनिंग वॉल, बस एट पर्टिकुलर इंटरवल्स हम यहाँ पे काउंटर फोर्स प्रोवाइड करते थे जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस काउंटर फोर्स इसका जो बिहेवियर है वो लोड आने का इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू कैंटिलिवर रिटेनिंग वॉल. So here we can see just because of the provision of counter force, this stem started acting like continuous slab instead of cantilever slab as that of cantilever retaining wall. Similarly, this hill slab also started acting like continuous slab. Okay, so because of the continuous slab यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे मिड स्पैन पे मोमेंट डेवलप होती है PL स्क्वायर बाय 16 और एंड सपोर्ट मतलब जहाँ पे कि काउंटर फोर्स प्रोवाइड किए गए वहाँ पे मोमेंट्स डेवलप होती है PL स्क्वायर बाय 12. So where P is the pressure due to the backfill at the base of the stem. Okay. Similarly, in case of heel slab, same WL square by 16 and WL square by 12. Okay, where W is the net downward pressure, and this toe slab act as the cantilever slab only, as means इसका जो डिजाइन है वो सेम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में जैसे टो स्लैब डिजाइन करते हैं वैसे इसका डिजाइन रहता है. और जो काउंटरफोर्ट है दिस काउंटरफोर्ट एक्ट्स एज अ फ्लेंज सेक्शन और टी बीम. ओके, तो हम इसका एक सम देखते हैं. A counterfort retaining wall has overall height of 9 meter, out of which 1.5 meter is below ground level. तो मतलब ने हमें कैपिटल H दिया है 9 मीटर, आउट ऑफ मतलब DF is 1.5 meter. The earthwork on the hillside is level with the top of the wall and has a density of 18 kilonewton per meter cube. मतलब horizontal backfill है. Then angle of friction is 30 degree. Phi is given as 30 degree and the coefficient of friction at base is 0.6 मतलब mu का value 0.6. The SBC of soil is 225 kilonewton per meter square. Then spacing of counterfort is 3.5 meter center to center. Design vertical stem, heel slab, toe slab counterforts. Use M20 and Fe415. Okay. So we'll start with the solution. First of all, given data. So capital H is 9 meter. DF मतलब जो उसका डेप्थ है बिलो ग्राउंड लेवल विच इज 1.5 मीटर. गामा इज गिवन एज 18, phi 30 degree, mu 0.6, SPC Q naught which is 225 kilonewton per meter square, and L is nothing but spacing of counterfort which is 3.5 meter center to center. Okay, so step one is proportioning of all. So first is we have to assume width of stem. अभी कैंटिलर रिटेनिंग वॉल में क्या होता था, जो टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ अलग अलग रहती थी, इंक्रीजिंग होती थी. बट यहाँ पे क्या होता है, जब हम काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल डिजाइन करते हैं तो हम यहाँ पे एक ही विड्थ रखते हैं जो कि विड्थ वैरी होता है 400 mm से लेकर 500 mm के बीच तक. सो विल assume here 450 mm. Okay, next is width of base which is given by 0.6 into h, so 0.6 into 9 we'll get here 5.4 meter. So हम इसको increase करके लेंगे 5.5 meter पे. Okay, next toe projection. So toe projection is given as 1/4 of b, so 1/4 of 5.5 we get here 1.37, we will make it 1.4 meter. Next, thickness of base slab. So the thickness of base slab is proportionate by half bracket h by 12 plus h by 15. So यहाँ पे हमने h का वैल्यू पुट किया 9, so we get here 0.675, so we'll round off it to 0.68 meter. Next is spacing of counterfort जो कि क्वेश्चन में दिया है 3.5 मीटर सेंटर टू सेंटर. नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ काउंटरफोर्ट, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं 400 mm से लेकर 500 mm तक बीच, सो हम इसको भी प्रोवाइड करेंगे 450 mm. Okay, now first of all अभी हमें इसका स्टेबिलिटी चेक करना है. तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सो दिस इज स्टेम. जो स्टेबिलिटी चेक जब करते तब इसमें काउंटरफोर्ट का कोई भी रोल नहीं होता. ओके, सो यहाँ पे हमने ये स्टेम बेस स्लैब उसके जो भी डायमेंशन हमने लिए थे वो सारे डायमेंशन हमने यहाँ पे दे दिए.
यानी डायमेंशन देने के बाद अगेन हमने इसको स्प्लिट किया है। सो दिस इज W1, W2, W3 और यहाँ पे हमने एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्रॉ किया है। उसके लिए यहाँ बेस का प्रेशर आएगा K इंटू गामा इंटू एच। सो K इज 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। फाइव का वैल्यू है 30, हमने यहाँ पे पुट किया, वी गेट हियर K इज 0.33। देन यहाँ पे हमने ये फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट के अपने को बेस प्रेशर आया 53.46 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Then total PA is what? Area of this active earth pressure diagram. So half into base into height. So you put out the values, we get here 240.57, मतलब P का वैल्यू है 240.57। नेक्स्ट स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेबल बनाया। सो फर्स्ट W1, सो वी कैन सी, सो व्हाट इज W1? W1 इज दिस रेक्टेंगुलर पार्ट। सो इसका वेट आएगा length into width into density. It is made of a concrete, therefore density is 25, so you'll get here 0.45 into ये total 9 है, 9 में से 0.68 क्या है, we get here 8.32 into 25, so you'll get here 0.45 into 8.32 into 25, get here 93.5। देन ये वेट है, सो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसलिए ये V के कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट इसका एक्स बार हमें लेना है टो से। सो टो से फर्स्ट इज 1.4 मीटर कांस्टेंट प्लस इट विल एक्ट एज मिड पॉइंट ऑफ 0.45, सो विल गेट हियर 1.4 प्लस 0.45 by 2, we get here 1.625 meter, therefore so we'll get here resisting moment V into X, so we get here 152.1। next, so next is W2, so W2 is this part, again it is in the form of rectangle, so length into width, so इसका length है 5.5, width है 0.68 into 25, so get here 93.5। again तो ये भी वेट है, सो वर्टिकली डाउनवर्ड, सो 93.5। देन ये एक्ट करेगा डायरेक्ट इसके मिड पॉइंट पे। ओके, देन हाँ ये जाएगा रेजिस्टिंग मूवमेंट में। नाउ थर्ड इज this part which is soil, so this soil is also in the form of rectangle, so length into width, so length is, so this is 3.65 into this height is 8.32 into इसका जो gamma है that is 18। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट के वी गेट हियर 546.62, ये भी वेट है, सो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। देन इसका जो सेंट्रॉइड है, सो यहाँ से दिस 1.4 प्लस 0.45 प्लस 3.65 by 2, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट के वी गेट हियर 3.675, सो वी गेट हियर, तो ये भी जाएगा रेजिस्टिंग मूवमेंट में। नेक्स्ट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है, सो पी इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, तो हम यहाँ पे पूरे आया वो हमने हॉरिजॉन्टल के इस कॉलम में डाला। देन इसका वर्टिकल डिस्टेंस आएगा h/3, सो 9/3 वी गेट हियर 3। देन ये जाएगा ओवरटर्निंग मूवमेंट में, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया समेशन V, समेशन H, समेशन MR, समेशन MO। So next, so first is factor of safety against overturning, so it is given by summation MR upon summation MO, values put के we get here 3.3, so it is greater than 1.55, therefore safe। Next is factor of safety against sliding, so it is given by mu into summation V upon summation H, so mu is given as 0.6 in question, summation V is 733.72 upon summation H is 240.57, values put के get here 1.8 greater than 1.55, therefore safe। Next is factor of safety against base pressure, so first we calculate X, so X is given by summation MR minus summation MO upon summation V, तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज पुट के we get here X has 2.31 meter, then E eccentricity is given as B by 2 minus X, this should be less than B by 6, so B by 6 का वैल्यू आ रहा है 0.91, और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट के इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वी गेट हियर 0.44, so it is less than 0.91, therefore okay, therefore our eccentricity is 0.44 meter। then sigma max is given by summation V by B 1 plus 6E by B, तो इसमें सारे वैल्यूज पुट किए we get here 197.43 which is less than SPC which is 225 kilonewton per meter square, therefore okay। next sigma minimum, so it is given by summation V by B 1 minus 6E by B, again यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज पुट किए we get here 69.36 which is greater than 0, therefore okay।
Okay, now we'll start with design of vertical stem. So here vertical stem is in form of rectangle only. मतलब ये पूरा जो रिटेनिंग वॉल है इसका सिर्फ हम ये वर्टिकल स्टेम का पार्ट देख रहे हैं. ओके, सो ये वर्टिकल स्टेम, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्टेम के लिए हमने इसका पहले बेस प्रेशर निकाला. तो इट इज के इंटू गामा इंटू एच. हियर एच इज ओनली दिस, जो वर्टिकल स्टेम का जो हाइट है वही. सो 8.32, सो यू गेट हियर 49.5 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, देन अभी जैसा कि हमने पहले देखा था, बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ काउंटर फोर्स इट विल एक्ट एज अ कंटिन्यूअस स्लैब. सो कंटिन्यूअस स्लैब में दो तरह के मूवमेंट आएंगे. सो फर्स्ट इज पॉजिटिव इमीडिएट सेंटर which is given by 1.5 PL square by 16. 1.5 इसलिए क्योंकि हम इसको फैक्टर्ड करके लेना है इसलिए. सो 1.5 PL square by 16 हमने सारे वैल्यूज पुट किए, वी गेट 56.84 किलो न्यूटन मीटर. Next is minus MD at counterfort means at support which is given by 1.5 into PL square by 12. Again 1.5 इसलिए क्योंकि इसको हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट के वी गेट हियर 75.8 किलो न्यूटन मीटर. Okay, next is factored shear force, so which is 1.5 into PL by 2, values put ke we get here 130 kilonewton. Okay, check that by flexure which is maximum MD is equals to MU. maximum MD, अब इसमें से maximum कौन सा है? So 75.8, so 75.8 into 10 raised to 6 is equals to 0.138 FC के BD square. 0.138 इसलिए क्योंकि यहाँ पे अपने स्टील का ग्रेड दिया स्टील का ग्रेड दिया Fe415. तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट के वी गेट डी एज 165.72. डी प्रोवाइड इज दिस, टोटल डेप्थ हमने प्रोवाइड किया 450 mm, उसमें सिर्फ 50 mm का कवर. सो आएगा 400 mm, सो विच इज ग्रेटर देन डी. सो हियर अपना जो डी प्रोवाइडेड है वो ग्रेटर है, सो इट इज सेफ. Now next is area of steel. So first we will calculate minimum area of steel, so which is 0.12% of BD, or 0.12% of B into D, we get here 540 mm square. So first we will calculate positive ST, so which is given by एक ही फॉर्मूला है 0.5 FCK upon FY 1 minus under root 1 minus 4.6 MU upon FCK BD square into BD. तो उस फॉर्मूला में हमने सारे के सारे वैल्यूज पुट किए, ये आया 402, बट विच इज नॉट ग्रेटर देन मिनिमम ST, देयरफॉर आवर पॉजिटिव ST will be equal to minimum ST. So हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 540 mm square. Now spacing फाइंड आउट करेंगे using 12 mm dia bars. So spacing 1000 into pi by 4 into d square upon AST. So we get here 209, उसको हमने राउंड ऑफ कर लिया 200 mm, which is less than 300 mm. Therefore, okay, therefore we'll write provide 12 mm dia bars at the rate of 200 mm center to center. नेक्स्ट निगेटिव एसटी. अब निगेटिव एसटी में क्या करना है, बस एमयू में यहाँ पे अपने को निगेटिव एमयू का वैल्यू डालना है, बाकी सब सेम रहेगा. तो है 540.2, सो इट इज ग्रेटर देन और ऑलमोस्ट इक्वल टू मिनिमम एसटी, देयरफॉर ओके. सो उसका स्पेसिंग यूजिंग 16 mm डाया बार्स. सो 1000 into pi by 4 d square upon AST, so we get 208. हमने इसको राउंड ऑफ करके लिया 200, so which is less than 300 mm, therefore okay. Next, distribution steel. So distribution steel is equals to minimum steel which is 540. तो हम इसके लिए यूज करेंगे 10 mm डाया के बार्स. देन इसका स्पेसिंग which is 1000 into pi by 4 d square upon d, so you get here 140 mm, so which is less than 450 mm, therefore okay, क्योंकि distribution steel का check for spacing है 450 mm. So provide 10 mm dia bars at the rate of 140 mm center to center. Next which check for shear. So VU हमें आया था 130 kilonewton. So tau UV is VU upon BD. So 130 into 10 raised to 3 upon 1000 into 400. So you get here 0.32 Newton per mm square. Next percentage PT. So which is 100 AST upon BD. तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया, we get here percentage PT at 0.13. So अगर हम यहाँ पे इंटरपोलेशन करके देखें तो टाउ UC का जो वैल्यू है, टाउ UC का वैल्यू आता है 0.28 और टाउ UV का वैल्यू है 0.32. So which is not safe in shear. So to avoid shear, what we'll do, we will provide percentage PT such that tau UV comes to
टाउ यूसी, इन दोनों को हम इक्वल करके लेंगे। देयरफॉर वी विल प्रोवाइड परसेंटेज पीटी फॉर टाउ यूसी इज इक्वल टू 0.32। अब यहाँ पे वापस इंटरपोलेशन करना है, बट हम लोग अब तक जो करते हैं उससे उल्टा करना है। अब तक हम लोग ऐसा करते थे, परसेंटेज पीटी रहता था, उसके लिए टाउ यूसी निकालते थे। अभी इस टाउ यूसी के लिए अपने को परसेंटेज पीटी निकालना है। तो अगेन हमने पेज नंबर 73 से टेबल से सारे वैल्यूज लिए, देन इसका इंटरपोलेशन किया। सो बाय इंटरपोलेशन वी गेट परसेंटेज पीटी एज 0.2%. So according to that percentage PT हम लोग AST प्रोवाइड करेंगे. So we will provide 0.2 200 into ST upon 1000 into 400 which is BD. So we get AST here which is 800 mm square. Okay, so now अभी using 16 mm dia bars उसी spacing प्रोवाइड करेंगे. So for spacing again वही एक ही फॉर्मूला है. So spacing at 250 mm which is less than 300 mm. Therefore, okay. Therefore, we will provide 16 mm die bars at the rate of 250 mm center to center. यहाँ पे stem का डिजाइन पूरा हुआ. Now we'll start with design of heel slab. So heel slab में सिर्फ जो heel वाला पार्ट है वही हमने कंसिडर किया है. ये पूरी वॉल में सील. सो हील वाले पार्ट पे क्या क्या ऐड कर रहा है? फर्स्ट इज सॉइल का विथ W1, देन जो इसका सेल्फ वेट रहेगा W2. अभी हमें ये सारा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेना है. ओके, क्योंकि हमें इसका फाइनली मूवमेंट निकालना है तो हम इसको प्रेशर के फॉर्म में लेंगे. सो दिस इज W1 W2 और जो डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है इसमें से ये वाला कंसिडर करना है, मिनिमम वाला. ओके, सो W1 विल बी व्हाट? सिंपली दिस इज प्रेशर के टर्म में लेना, इसलिए सिंपली दिस इज हाइट इनटू डेंसिटी. सो टोटल हाइट कितना था? ये बैकफिल का हाइट था 8.32. सो 8.32 हाइट है इंटू डेंसिटी इज 18. सिमिलरली अभी इसका हाइट कितना है? 0.68 इंटू इसका डेंसिटी है 25 बिकॉज इट मेड अप ऑफ कंक्रीट और ये तो अपवर्ड जा रहा है. सो अपवर्ड का इंटेंसिटी यहाँ पे हमने पहले ही निकाला है. दिस इज नथिंग बट आर सिग्मा मिनिमम एंड सिग्मा मैक्स. दिस इज बेस प्रेशर डायग्राम. ओके, so W1 is 8.32 into 18. We get here 149.76 kilonewton per meter square. Then W2 भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है which is 0.68 into 25. We get here 17 kilonewton per meter square. Then sigma minimum जो अपवर्ड एक्ट हो रहा है which is 69.36 kilonewton per meter square. Therefore, we will calculate net pressure considering downward positive. So 149.76 plus 17 minus 69.36, we get here 97.4 kilonewton per meter square. So again slab का डिजाइन कर रहे हैं. So for 1 meter strip, so 97.4 into 1 we get a 97.4 kilonewton per meter. Okay, now factored bending moment and shear force. अभी यहाँ पे जैसा कि हमने स्टेम में निकाला था अगेन वैसा ही निकालना है. Here only P is replaced by W. So 1.5 into WL square by 16. So यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज पुट किए. We get here positive MD as 111.85 kilonewton meter. Then minus MD at counterforts which is given by WL square by 12. Okay, तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज पुट किए. So values पुट करने के बाद we get here 149.14 kilonewton meter. Next is factored shear force. V is equals to 1.5 into WL by 2. यहाँ पे again सारे values put के we get here 255.6 kilonewton. Now first is check depth by flexure. So maximum MD is equals to MUlim. So negative वाला maximum था. So 149.14 into 10 raised to 6 is equals to 0.138 FCK BD square. तो हमें यहाँ से D मिला 232.47 mm which is less than D provided, which is total depth था 680, उसमें से हमने 50 mm का कवरेज किया. So which is 630 mm. Therefore okay. Then next is area of steel. So first we calculate minimum AST which is 0.12% of BD. तो वो हमें आया 816 mm square. Now first पर पॉजिटिव AST के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है, बस यहाँ पे MU हो जाएगा. जो पॉजिटिव वाला आया था वो वाला D है यहाँ पे 630. So values put के and we get here 500.21 but which is not greater than minimum AST. Therefore our positive AST will become minimum AST which is 816 mm square. So उसका स्पेसिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे using 12 mm dia bars. So spacing which is 1000 into pi by 4 D square upon AST. वैल्यूज पुट के we get here 138.59. तो हम इसको राउंड ऑफ करके लेंगे 130 mm पे, less than 300. Therefore okay, therefore we'll write provide 12 mm dia bars at the rate of 130 mm center to center. Okay, now next is negative AST. negative AST के टाइम बस क्या, ये जो MU है यहाँ पे हमें नेगेटिव वाला MU डालना है. So
So डाला और so again calculate किया, we get here 670.82 again which is not greater than minimum ST. So your negative ST will become minimum ST which is 816 mm square. So हम लोग सेम बार का सेम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वही यहाँ पे होने वाला है. So 12 mm die bars at the rate of 130 mm center to center. Now next is distribution steel. So for distribution steel which is equal to minimum ST, so 816 mm square. So हम उसका स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे using 10 mm dia bars. So using 10 mm dia bars स्पेसिंग हमने निकाला, so we get a 96.2 mm. So हम इसको राउंड ऑफ करके लेंगे 95 mm. इसे में हम we can provide 12 mm bars per 12 mm bars also because we are getting spacing lesser than 100 mm. बट अभी हमने जो मेन स्टील प्रोवाइड करता है वो मेन स्टील ही हमने प्रोवाइड करता है 12 mm के बार में, इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन में इसका डायमीटर कम करके लेना ही होगा. So here therefore 95 mm, therefore provide 10 mm die bars at the rate of 95 mm center to center. Next is check for shear. So for check for shear VU हमें आया था 255.6 किलो न्यूटन. So tau UV is VU upon BD. तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, we get 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. So next कैलकुलेट हमने किया परसेंटेज पीटी. सो परसेंटेज पीटी आया हमें 0.129. अगेन अगर हम इंटरपोलेशन करें तो यहाँ पे टाउ यूसी का वैल्यू आ रहा है 0.28 और टाउ यूवी है 0.4, देयरफॉर इट इज नॉट सेफ इन शेयर. सो अगेन हम वही स्टेप करेंगे टू अवॉइड शेयर रेनफोर्समेंट. वी विल प्रोवाइड परसेंटेज पीटी फॉर टाउ यूसी इज इक्वल टू 0.4. सो अगेन यहाँ पे हमने टाउ यूसी का वैल्यू लिया और टाउ यूसी फॉर 0.4 के लिए जो भी इसका आ रहा है वो हमने कैलकुलेट करके लिया इसका परसेंटेज पीटी. सो बाय इंटरपोलेशन यू गेट परसेंटेज पीटी एज 0.33 परसेंटेज. ओके, सो फॉर 0.33 परसेंटेज पीटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एएसटी. सो वी गेट हियर एएसटी एज 2079 mm स्क्वायर. सो यूजिंग 12 mm यूजिंग 20 mm डाया बार्स इसका भी स्पेसिंग फाइंड आउट करके लिया. So using 20 mm die bars spacing हमें आया 150 mm which is less than 300, therefore okay. So we'll provide 20 mm die bars at the rate of 150 mm center to center at both, that is at mid span at counterforts. Okay, तो यहाँ पे इसका स्टेम और हिल स्लैब का डिजाइन पूरा होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका टो स्लैब और काउंटरफोर्ट्स का डिजाइन.